Hi guys and welcome to the second class of Indian Contract Act 1872. A quick revision कि अपने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे और उसके बाद अपने आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इनैक्ट कब हुआ था? 25th ऑफ अप्रैल 1872. एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1870. किसने बनाया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंग्लिश लॉ. Contract defined under section 2 clause number H. It is an agreement enforceable by law. It is an agreement enforceable by law. यानी contract बनाने के लिए we need an agreement and that agreement must be enforceable by law. यानी agreement plus enforceability by law is equal to contract. Agreement defined under section 2 clause number E. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is termed as an agreement. Two essential ingredients of an agreement. Plurality of persons. There must be minimum two persons to form an agreement. Consensus ad idem. It means meeting of minds on the same thing at the same time for the same purpose. Enforceability by law मतलब that agreements must be legally binding. क्या all agreements are legally binding? क्या नहीं. दो को छोड़ के कौन कौन सा? Domestic relationship between husband and wife and agreement related to social matters. Agreements related to social matters and domestic relationship between husband and wife held in the case of Balfour versus Balfour. इसमें क्या हुआ था? Husband was working in Ceylon. Wife was living in England. Husband agreed to pay a monthly allowance to his wife, but later on, after finding out that the wife had been unfaithful to the husband stopped paying the allowance. Okay, and wife sued him under Contract Act. Court ने क्या बोला? Court held that domestic relationships between husband and wife lacks legal obligation and are not covered under Contract Act. Okay. फिर अपने आ गए थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इन्फोर्सेबिलिटी, देन वी हैव परफॉर्मेंस एंड देन वी हैव फॉर्मेशन. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इन्फोर्सेबिलिटी सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ प्लस it contains all the essential elements of section 10. लगे हाथों section 10 का essential elements भी रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले आएगा उसमें ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कैपेसिटी एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सबसे पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर फ्री कंसेंट, लीगल से 3 पॉइंट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी, लीगल ऑब्जेक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. कंप्लीट. आ जाओ. वैलिड का ठीक उल्टा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड इट डज नॉट कंटेन्स द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10. फिर है voidable contract. Voidable contract is a contract which is enforceable at the option of aggrieved party. A contract is voidable when the consent is not free, and consent is not free in 4 cases: coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. सेक्शन 15, 16, 17, 18. ठीक. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज फोरबिडन बाय लॉ. एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माने the contract at the time when the contract was made, it was valid, but due to some technical defect it cannot be enforced. For example, time bar debt. ड्यू डेट से 3 साल तक का टाइम होता है क्रेडिटर के पास में टू स्यू द डेटर फॉर हिज ड्यूज. अगर 3 साल में नहीं किया तो डेट बिकम्स टाइम बार्ड. अब आप आगे स्यू नहीं कर सकते. ठीक है. फिर परफॉर्मेंस. On the basis of performance, two types of contract: executed contract and executory contract. Executed contract execute हो चुका है, मतलब parties to the contract have performed their obligation. It is executed contract. Executory contract मतलब when the performance is outstanding and it will be performed in the future. एक पार्टी का बाकी है तो unilateral, दोनों का बाकी है तो bilateral. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. Types of contract on the basis of formation.
सिंस मेरे पास ऑलरेडी इसके नोट्स लिखे हुए हैं, तो पहले आप लेक्चर सुन के समझ लें। वीडियो में आई विल टेल यू गाइस व्हेन टू पॉज एंड राइट डाउन दी नोट्स। लिखना जरूरी है तो जरूर से लिखना, ठीक है। और अगर आपको लर्न नहीं हो जाए और उसके बाद अगर आप लिख रहे हो बिना देखे, तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड, ठीक है। पार्टीज ने डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्रेसली बोला है या लिखा है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड, इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी आइदर ओरल और इट मे बी आइदर इन रिटन फॉर्म, ठीक है। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माने ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, जब आप नॉर्मली बस या ऑटो यूज करते हैं टू ट्रैवल, ठीक है, तब बस स्टैंड पे बस रुकता है, बस स्टैंड पे बस रुकता है, एंड आप बस को जब बोर्ड करते हैं तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द बस। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि बस आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, एंड इन रिटर्न यू गाइस विल पे अ फेयर, अ बस फेयर टू द बस कंडक्टर। क्या ऐसा कभी होता है कि बस रुका है, ठीक है, कंडक्टर ने आपको ऑफर दिया है, फिर आप मुझसे एक्सेप्टेंस देंगे, उसके बाद आप चढ़ेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टीज के एक्शन से ही वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है अपने आप, कोई बात नहीं होती है, बस कंडक्ट ऐसा था, एक्शन ऐसा था कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक और टाइप है जिसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स माने व्हेन द पार्टीज आर साइलेंट, the parties are silent with each other, it is a tacit contract. For example, कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। क्या कैश विड्रॉ करते टाइम एटीएम से आप एटीएम मशीन से बात करते हो क्या? नहीं, ठीक है ना। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द parties are silent to with each other. फिर ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप इंटरनेट पे ऑनलाइन एंटर करते हो उसको हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। चाहे आप अमेजोन से कुछ सामान खरीदे या फ्लिपकार्ट से, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में आपका ऑलरेडी एक टॉपिक है इन द यूनिट कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हम वहाँ पे ऑलरेडी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर हियर। तो ये रहा आपका express contract, implied contract, tacit contracts and e-contracts. Express contract is when the terms and conditions of the contract are expressly mentioned. It is an express contract. It may be either oral or it may be either written. Implied contract is a contract which is formed by the conduct of the parties. For example, bus flying on the road. Then tacit contracts, when the parties entering the contract are silent with each other, it is a tacit contract. For example, cash withdrawn from ATM. And e-contracts are contracts which are entered using electronic means. Are e, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करें एंड ये चार डेफिनेशंस लिख लें, ठीक है। अब आ जाओ। अब हम लोग सेक्शन 10 के हर एक एलिमेंट को, सेक्शन 10 के हर एक एलिमेंट को अब हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट टू, सबसे पहले पढ़ेंगे द फर्स्ट टू, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ऑफर डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर ए, एंड एक्सेप्टेंस डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी। प्लीज ये सेक्शन 2 क्लॉज ए और 2 क्लॉज बी आप मत लिखना, अभी कुछ मत लिखना, जस्ट कीप हियरिंग, ठीक है ना, जस्ट लिसन। सेक्शन 2 क्लॉज ए में क्या डिफाइंड है? ऑफर, और सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस। तो सुनो, ऑफर का डेफिनेशन सीखने वाले हैं हम लोग, एकदम ध्यान से। व्हेन वन पर्सन, ठीक है, सुनो, व्हेन वन पर्सन, when one person signifies to another his willingness
to do or abstain from doing something with the view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, then such person is said to make an offer. ठीक है, एक इंसान, when one person signifies to another, ध्यान से डेफिनेशन को समझना, फिर अपने आप लर्न हो जाएगा। when one person signifies to another, एक इंसान दूसरे इंसान को जता रहा है। क्या जता रहा है, क्या दिखा रहा है? इस विलिंगनेस। विलिंगनेस माने इच्छा। एक इंसान दूसरे इंसान को अपना इच्छा बता रहा है। अब वो इच्छा कुछ करने का भी हो सकता है, टू डू, और एक इच्छा कुछ नहीं करने का भी हो सकता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ करना मतलब टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? हाँ होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है मीना और एक है रीना। फॉर एग्जाम्पल मीना मीना का मीना का कोलकाता के लेक टाउन एरिया में मीना का कोलकाता के लेक टाउन एरिया में एक ठो पान दुकान है। ठीक है, तो अब मीना का लेक टाउन एरिया में पूरा का पूरा मोनोपोली है, यानी कोई और वहां पे पान दुकान नहीं चला रहा है। अब अगर रीना आ जाती है और बोलती है और सोचती है कि मैं भी लेक टाउन एरिया में एक पान दुकान खोलूंगी, तो क्या मीना का मोनोपोली खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, मीना का मोनोपोली खत्म हो जाएगा। तो अब मीना क्या करेगी? मीना जाएगी रीना के पास और रीना को बोलेगी कि देख, तो देखो जहां पे भी पान दुकान खोलना है तू खोल, लेकिन लेक टाउन एरिया में मत खोल। रीना बोलेगी नहीं खोलने के बदले, नहीं खोलूंगी अगर पान दुकान तो इससे मेरा क्या फायदा है? तुम्हारा तो फायदा है पर मेरा क्या फायदा है? तो मीना बोलेगी कि लेक टाउन एरिया में पान दुकान नहीं खोलने का मैं तेरे को 10 लाख रुपया। ठीक है, तो मीना रीना को बोल रही है कि तुम अगर लेक टाउन एरिया में पान दुकान नहीं खोलोगी, मतलब कुछ नहीं करोगी, तब मैं तुमको बदले में 10 लाख रुपीज। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हुआ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द व्यू। सामने वाले को हम अपना इच्छा क्यों बता रहे हैं? सामने वाले को कुछ करने का या ना करने का हम इच्छा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरा बात मान ले, मेरा बात अप्रूव कर दे, मेरा बात स्वीकार ले, है ना? टू सच, एसेंट मतलब क्या होता है? एसेंट मतलब अप्रूवल। with a view to obtain the assent of that other person, कि सामने वाला मेरा बात सुन ले। ठीक है, टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, कुछ करने का या ना करने का इच्छा जिस जो भी आपने जाहिर किया है, तब सच पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर। देन सच पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर। ठीक है, ये बन गया पूरा ऑफर का डेफिनेशन। एक बार बोलेंगे, समझ आ गया डेफिनेशन पूरा एकदम अच्छे से? तो अब हम इसको लर्न करेंगे। when one person signifies to another, when one person signifies to another, क्या? his willingness, उसका इच्छा, to do, willingness इच्छा कुछ करने का भी हो सकता है, इच्छा कुछ नहीं करने का भी हो सकता है, नहीं करवाने का भी हो सकता है, to do और abstain from doing something। और ये इच्छा हम क्यों बता रहे सामने वाले को? ताकि सामने वाला मेरा बात मान ले, with a view to obtain the assent, the view to obtain the assent, assent माने approval, assent of that other person to such act or abstinence, then such a person is said to make an offer। एक बार वापस बोलेंगे, when one person signifies to another, क्या? his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, then such person is said to make an offer। एक बार वापस बोलेंगे, when one person signifies to another, क्या? his willingness to do or abstain from doing something with the view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, then such person is said to make an offer। एक बार वापस बोलेंगे, when one person signifies to another his willingness to do
or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, then such person is said to make an offer. ठीक है, अब आओ ऑफर का डेफिनेशन एक बार हम अच्छे से लिखेंगे. सेक्शन 2 क्लॉज ए. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of the other person to such act or abstinence, then such person is said to make an offer. Okay. एक बार ऑफर का डेफिनेशन वन लास्ट टाइम. when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person, then such person is to such act or abstinence, then such person is said to make an offer. Okay, our next types of offer. ठीक है, types of offer पहले सुन लो, आपको टाइम दूंगी मैं लिखने का, अब उसके बाद लिख लेना. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफर. सबसे पहले टोटल 5 टाइप्स ऑफ ऑफर है. सबसे पहले आता है जनरल ऑफर, फिर आएगा स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर, फिर है काउंटर क्रॉस एंड स्टैंडिंग का एक नाम और ओपन का एक नाम और कंटिन्यूइंग ऑफर. ठीक है, टोटल 5 टाइप्स ऑफ ऑफर. जनरल ऑफर, स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग या फिर ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर. अब एक एक को समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है जनरल ऑफर. ठीक है, जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर इज एन ऑफर, जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज ओपन टू पब्लिक एट लार्ज. सबके लिए खुला है वो ऑफर, तो जो भी चाहे, जो भी ये ऑफर का मजा उठाना चाहता है, वो आके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, तो जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज ओपन टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट. ठीक है, what is a general offer? A general offer is an offer which is open to public at large and hence anyone can accept it and do the desired act. जो लिखा है वो कर दो, deemed acceptance मान लिया जाएगा. इसका ना एक केस है, ये जनरल ऑफर से रिलेटेड एक केस है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है. ठीक है, कार्लाइल वर्सेस, केस का नाम है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. का नाम है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी. ये केस में क्या हुआ था एक बार सुनो. ठीक है ना, कहानी की तरह सुनो, मस्त एंजॉय करो. देखो, कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी वाज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बनाती थी. ठीक है, एंड कार्लाइल 60 साल की बूढ़ी औरत थी. अब ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक बार ये एक दवाई बनाया, एक ऑइंटमेंट बनाया और एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जो कोई भी ये दवाई, ये ऑइंटमेंट को एज पर द डायरेक्शंस प्रेस्क्राइब्ड यूज करेगा और यूज करने पे अगर उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई, तब
कंपनी विल कॉम्पेंसेट दैट पर्सन। ठीक है, कार्लाइल ने जब ये ऑफर देखा तो बोला ठीक है चलो यूज कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं भी हुआ ज्यादा से ज्यादा तो कम से कम पैसे तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कार्लाइल ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब यूज करने पे उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तब वो कंपनी के पास गई और कंपनी से कॉम्पनसेशन मांगा। तो कंपनी एक बार में कॉम्पनसेशन देने के लिए राजी तो नहीं हुआ, उसने बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया कि ये तो हमने एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए निकाला था, ठीक है, इट वाज नॉट अ जनरल ऑफर एंड हैन देन। कार्लाइल चली गई कोर्ट एंड कार्लाइल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पे केस कर दिया। ठीक है, तो वहां पे कोर्ट ने बोला कि देखिए आपके एडवर्टाइजमेंट में, आपके जनरल ऑफर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि इट बिलोंग्स टू, या ये ऑफर एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए है, या सिर्फ यही लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ मेल यूज कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते हैं, एंड वाइसी वर्सा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो हेंस अगर कार्लाइल ने यूज किया है तो इट वॉज अ जनरल ऑफर, और अगर वो उसने अगर यूज किया है तो अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, एंड हेंस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी हैड टू कॉम्पनसेट कार्लाइल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम में इस क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बेसिकली फैक्ट ऑफ द केस सेम रहेगा, बस नाम अलग अलग कर देगा, नाम डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। जैसे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के इंस्टेड में कोई और फार्मा कंपनी का नाम दे दिया, कार्लाइल की जगह में कोई और इंडियन वुमेन का नाम दे दिया, जैसे अनीता दे दिया, या रीना दे दिया, मीना दे दिया, कुछ भी दे देगा। ठीक है, लेकिन प्लॉट सेम रहेगा कि एक फार्मा कंपनी था, दवाई बनाया, एडवर्टाइजमेंट निकाला और बोला कि इसको यूज करने से अगर किसी को कोई बीमारी हो गया, या इन्फ्लुएंजा, या फिर अपने तो इन्फ्लुएंजा है, उन लोग कोई बीमारी बोल सकते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कुछ भी बोल सकते हैं, अगर हो गया तो कंपनी उसको कॉम्पनसेशन देगी। रीना, मीना, अनीता जो भी है उन्होंने इसको यूज किया, उसको हो गया बीमारी, अब बताओ कंपनी कॉम्पनसेशन देगी कि नहीं देगी, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो तुम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस का रेफरेंस दे करके कंक्लूजन लिखोगे कि हाँ भाई इसका फैक्ट और कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का फैक्ट एकदम सेम है, तो भाई कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ये हुआ जनरल ऑफर। फिर आ जाओ स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर। अब स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर में क्या होता है, व्हेन जनरल ऑफर में द ऑफर वाज ओपन टू पब्लिक एट लार्ज, लेकिन स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर में द ऑफर इज मेड ओनली टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। जनरल या फिर स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर में द ऑफर इज मेड ओनली टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, एक पर्टिकुलर इंसान को ही ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो वो होता है स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफाइड ऑफर। इस केस का नाम था, इसमें जो केस था वो उसका नाम था बोल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है, क्या, बोल्टन वर्सेस जोन्स। थोड़ा ध्यान से ये केस स्टडी एक बार समझेंगे। इस केस में बेसिकली तीन पार्टीज है, एक है ब्रोकलहर्स्ट, फिर है बोल्टन, और है जोन्स। ठीक है, अब जो ब्रोकलहर्स्ट है ना, ही वॉज अ बिजनेसमैन, एंड जोन्स ही ब्रोकलहर्स्ट का कस्टमर था, एंड बोल्टन वॉज द क्रेडिटर ऑफ ब्रोकलहर्स्ट। सिंस ब्रोकलहर्स्ट बोल्टन को पैसा नहीं चुका पाया टाइम पे, तो ब्रोकलहर्स्ट ने अपना जो बिजनेस है वो बोल्टन को बेच दिया। ठीक है, he sold his business to बोल्टन। ठीक है, अब ब्रोकलहर्स्ट ने बोल्टन को अपना बिजनेस बेच दिया है, ये बात जोन्स यानी कि ब्रोकलहर्स्ट के कस्टमर को नहीं मालूम है। ठीक है, अब जोन्स एंड ब्रोकलहर्स्ट का कुछ ड्यूज पेंडिंग था, तो जोन्स ने सोचा कि जोन्स ब्रोकलहर्स्ट से ड्यूज जितना वर्थ ऑफ गुड्स ऑर्डर कर देगा, खरीद लेगा, जिससे क्या होगा, इनका जो ड्यूज है वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो जोन्स ने एक परचेज ऑर्डर बनाया, और परचेज ऑर्डर के ऊपर में ब्रोकलहर्स्ट का नाम लिखा, और ये परचेज ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को भेज दिया उसके ऑफिस या शॉप के एड्रेस पे। लेकिन वो तो ये बात मालूम नहीं है
कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया है। तो परचेज ऑर्डर में नाम किसका है? ब्रोकलहर्स्ट का है, लेकिन मिला किसको होगा? बोल्टन को मिला होगा। ठीक है। अब बोल्टन के पास जब परचेज ऑर्डर पहुंचा, बोल्टन के पास जब परचेज ऑर्डर पहुंचा, तो बोल्टन ने देखा कि उसपे नाम जो है ब्रोकलहर्स्ट का लिखा हुआ है। लेकिन बोल्टन, अब तो ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस तो बोल्टन ही चलाता है। तो बोल्टन बोला ठीक है, ब्रोकलहर्स्ट के नाम से आया, कोई बात नहीं, लेट मी फुलफिल द ऑर्डर। एंड बोल्टन ने परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ सारा सामान जोन्स को भेज दिया। ठीक है, गुड्स भेजा। बट बोल्टन तो नहीं जानता है कि जोन्स और ब्रोकलहर्स्ट के बीच का कुछ ड्यूज पेंडिंग था, और वो ड्यूज को सेटल करने के लिए जोन्स ने सामान खरीदा है। तो बोल्टन ने गुड्स के साथ साथ अपना इनवॉइस यानी कि बिल भी भेजा। ठीक है, बिल भी भेजा। अब जब इनवॉइस गया, तो इनवॉइस ऑब्वियसली ब्रोकलहर्स्ट के नाम से नहीं गया, इनवॉइस में बोल्टन का नाम लिखा हुआ था। अब जोन्स को पता नहीं कि बोल्टन कौन है। ठीक है, जोन्स को इनवॉइस मिला, दिख रहा है बोल्टन के नाम से आया है, उसको पता ही नहीं है बोल्टन कौन है। तब इंक्वायरी करने पे फोन करके इन लोग बात किए, तब पता चला, फोन तो नहीं, जैसे भी बात किए तो इनको पता चला कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया है, एंड जो परचेज ऑर्डर का फुलफिलमेंट है वो बोल्टन ने किया है इंस्टेड ऑफ ब्रोकलहर्स्ट। जोन्स से बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो आपने बिजनेस टेक ओवर कॉल कर लिया है, ये बात मुझे मालूम नहीं था। पर मैंने तो गुड्स इसीलिए ऑर्डर किया था क्योंकि ब्रोकलहर्स्ट से हम कुछ पैसा पाते थे, हमारा कुछ ड्यूज सेटल करना बाकी था। तो वो ड्यूज को सेटल करने के लिए मैंने गुड्स खरीदा था ब्रोकलहर्स्ट से। ठीक है, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर भेजा था मैंने। अब बोल्टन बोल रहा है ये सब बात हमको नहीं मालूम है। ठीक है, हमने आपको गुड्स भेजा है, बदले में बिल दे दिया है, आप पैसे चुका दीजिए। जोन्स बोल रहा है अब बात तो सुनिए, मैंने अपना ड्यूज सेटल करने के लिए गुड्स ऑर्डर किया था। ठीक है, अब तो जोन्स पैसा देने से मना कर दिया। ठीक है, बोल्टन ने जोन्स पे केस कर दिया, इसीलिए केस का नाम बन गया बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो बोल्टन ने जोन्स के ऊपर में केस कर दिया। ठीक है, तो जब बात कोर्ट में पहुंचा, तब कोर्ट बोला कि परचेज ऑर्डर पे नाम किसका लिखा था? परचेज ऑर्डर पे नाम लिखा हुआ था ब्रोकलहर्स्ट का, यानी कि इट वाज अ स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि इट वाज अ स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि अगर किस ऑफर में इंसान का नाम स्पेसिफाइड है, या आप जब किसी को ऑफर कर रहे हो वो इंसान स्पेसिफिक है, तब उस ऑफर का एक्सेप्टेंस भी केवल और केवल वही इंसान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बात तो बोल्टन को ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑफर वाज अ स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि परचेज ऑर्डर में ब्रोकलहर्स्ट का नाम लिखा हुआ ही था, तो एक्सेप्टेंस भी ब्रोकलहर्स्ट को ही देना था। ठीक है, एंड यहाँ पे बोल्टन केस हार गया। जोन्स डिड नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू बोल्टन। आई होप आपको केस लॉ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर क्या होता है? सुनो, अभी तक क्या पढ़े? जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर माने, जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट इट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। किसका नाम? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी। फिर स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, इट इज अ स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। किसका नाम? बोल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है, अब आ जाओ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है? काउंटर ऑफर में जिसको ऑफर किया गया है, ऑफर किया गया है, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने राहुल को ऑफर किया कि ये पेन मैं उसको 100 रुपया में बेचूंगी। राहुल ने बोला हाँ मैं खरीदूंगा, पर पर 80 रुपया में। ठीक है, तो उसने, राहुल ने मेरा पूरा पूरा ऑफर, 100% ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं दिया,
पार्ट एक्सेप्टेंस किया, ये पार्ट एक्सेप्टेंस को ही क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और साथ ही साथ ओरिजिनल ऑफर में चेंजेस मॉडिफिकेशन भी तो कर दिया। मैं 100 रुपया में बेच रही थी, उसने 100 की जगह 80 कर दिया। है तो when the offeree offers qualified acceptance subject to modification in the original offer, it is a counter offer। काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर का पूरा रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले उसको ऑफर किया था 100 रुपया, अब उसने बोला मैं खरीदूंगा पर 80 रुपीज में, ठीक है। तो अब हाँ किसको बोलना है, मेरे को बोलना है। तो ओरिजिनल ऑफर जो मैंने किया था वो तो रिजेक्ट ही हो गया, ठीक है। इसीलिए काउंटर ऑफर को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। काउंटर ऑफर को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सुनो, काउंटर ऑफर क्या होता है? when the offeree when the offeree offers qualified acceptance subject to modification in the original offer, it is a counter offer। counter offer leads to rejection of the original offer, and it is also known as conditional acceptance। it is also known as conditional acceptance, ठीक। अब आओ क्रॉस ऑफर, ठीक है। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? मैंने राहुल को बोला क्या तुम ये पेन 100 में खरीदोगे? उसी समय राहुल ने मेरा ऑफर को पे बिना ध्यान देते हुए उसके सामने से बोला कि क्या आप ये पेन मुझे 100 रुपए में बेचेंगे? ये हो गया क्रॉस ऑफर। यानी कि जब दो लोग आइडेंटिकल एग्जैक्ट सेम टू सेम ऑफर एक्सचेंज करते हैं इग्नोरिंग ईच अदर्स ऑफर, तब हम इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर, ठीक है। तब ऐसा नहीं कि दोनों जन सेम ही बात बोल रहे हैं तो एक का बात ऑफर मान लेते और एक का बात एक्सेप्टेंस मान लेते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अभी भी कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आप एक के ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। समझा क्या? देखो, when two parties exchange identical offers ignoring the time of each other's offer, it is called a cross offer। there is no binding contract as one of the offer cannot be considered as an acceptance to another person's offer। ठीक है क्या? ठीक है, सुनो, तो क्रॉस ऑफर क्या हुआ? when two parties exchange identical offers ignoring each others ignoring the time of each other's offer, it is a cross offer, ठीक है। and there is no binding contract as one of the offers cannot be considered as acceptance to another person's offer। स्टैंडिंग या फिर ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। स्टैंडिंग या फिर ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर, ये एक ऐसा ऑफर है जो लंबे समय के लिए चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस इट इज स्टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में जब सुबह दूध वाला या फूल वाला दूध देने के लिए आता है या फूल देने के लिए आता है, वो हर दिन आपसे पूछता नहीं है कि कल आएंगे ना, कल आएंगे ना, नहीं। आप जब तक उसको मना नहीं करोगे तब तक वो आते ही रहेगा, समझा ना। और जब वो हर दिन आ रहा है और आप उससे हर दिन दूध ले ही रहे हैं, तब वो हर दिन आ रहा है, इट इज एन ऑफर। और आप दूध ले रहे हैं तो आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो जब तक आप उसको मना नहीं करोगे तब तक वो आके अपना काम करता रहेगा, समझा क्या? लेकिन कमर्शियल नेचर के ट्रांजैक्शंस अगर हम बात करें तो सबसे क्लासिक एग्जांपल है स्टैंडिंग ऑफर का टेंडर्स। जहाँ पे टेंडर्स खुला रहता है फॉर अ टाइम पीरियड, एंड जिसको भी अपना ऑफर सबमिट करना है वो उस टाइम पीरियड के विद इन सबमिट कर सकता है। तो अ स्टैंडिंग या फिर ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर इज एन ऑफर विच remains open for a long period of time, well 10, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये लिख ले टाइप्स ऑफ ऑफर, चार्ट बना लीजिएगा। जनरल एंड स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर लिख लेना, इधर में काउंटर क्रॉस एंड स्टैंडिंग लिख लेना, ठीक है। चलो, अब एक बार थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं। हम बता रहे हैं, तुम लोग पहचानना कौन सा ऑफर है, ठीक है। ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है वो हो गया स्टैंडिंग, सॉरी वो हो गया स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ऑफर। ऐसा ऑफर जो सबके लिए ओपन है, जनरल ऑफर, ठीक है, सबके लिए ओपन है, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये हो गया जनरल ऑफर, ठीक है। जब राहुल बोल रहा है कि मैं ये पेन खरीदूंगा पर 80 रुपया में, तो ये काउंटर ऑफर जहाँ पे ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन हो जाता है और अपने इसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। जब मैंने बोला कि
₹100 में ये पेन खरीदोगे? राहुल ने बोला क्या आप ₹100 में ये पेन देंगे? क्रॉस ऑफर, व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स आर एक्सचेंज इग्नोरिंग ईच अदर्स टाइम ऑफ ऑफर, ठीक है। एंड ऐसा ऑफर जो लंबे समय के लिए चलता रहता है, खुला ही रहता है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। का एक नाम और ओपन, का एक नाम और कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। अब आ जाओ एक्सेप्टेंस में, ठीक है। एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी, ठीक है। ऑफर के बाद आता है एक्सेप्टेंस। अब वही ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा, कौन देगा? जिसको ऑफर किया गया था, अब वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, यानी अपना अप्रूवल दे देगा, अपना असेंट दे देगा। तो डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted, and the offer once accepted it becomes a promise, okay? एक बार आपने हाँ बोल दिया तो भाई वादा पक्का हो गया है, तो अब वादा को निभाना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या बना? when the person to whom the offer is made, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted, and the offer once accepted it becomes a promise, the offer once accepted becomes a promise, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो हम ऑफर बोलते हैं ना, ऑफर का एक नाम और होता है प्रपोजल, ठीक है। जो इंसान ऑफर करता है उसको हम ऑफरर बोलते हैं, जिसको ऑफर किया जा रहा है यानी कि जो एक्सेप्टेंस देगा उसको हम ऑफर बोलते हैं। और अगर प्रपोजल के टर्म्स में का बात करें तो जो इंसान प्रपोजल दे रहा है उसको हम प्रपोजर बोलते हैं, प्रपोजर बोलते हैं। और जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये। एक बार एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन प्लीज वीडियो को रोक के लिख लेना। तो एक्सेप्टेंस का क्या डेफिनेशन बना 2 क्लॉज बी में? व्हेन वन पर्सन, सॉरी, व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ऑफर तो हो गया ना, अब एक्सेप्टेंस करना है। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड signifies his assent thereto, the proposal या the offer is said to be accepted, and the offer once accepted becomes a promise. अब लीगल रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्ट, ठीक है। लीगल रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप भी ऐसे ही कॉलम बनाइएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। समझते हैं इसको क्या बोल रहा है? द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। फॉर एग्जाम्पल मान लो रोहन एंड मोहन, ठीक है। रोहन इज एन ऑयल डीलर, रोहन इज एन ऑयल डीलर जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑयल में डील करता है, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। अब रोहन और मोहन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि रोहन विल सेल 10 लीटर्स ऑफ ऑयल टू मोहन एट द रेट ऑफ ₹100 पर लीटर, है। क्या ये ऑफर डेफिनेट है क्या? क्या ये ऑफर सर्टेन है क्या? नहीं। अरे भाई कौन से टाइप का ऑयल ये तो बता, कौन से टाइप का ऑयल ये तो बता, यही नहीं मालूम है। लेकिन अगर मोहन को पता होता कि रोहन इज ओनली डीलिंग इन कोकोनट ऑयल और ऑफर में लिखा होता कि रोहन विल सेल 10 लीटर्स ऑफ ऑयल टू मोहन एट द रेट ऑफ ₹100 पर लीटर, तब तो ऑफर सर्टेन ही था ना, क्योंकि पता ही है कि जो रोहन है वो एक ही टाइप का ऑयल में डील करता है विच इज कोकोनट ऑयल।
ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि ऑफर को पूरा पूरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पार्ट एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पेंसर्स में, जब आप चिप्स लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि चिप्स जो है ना, वो एक सिंगल पैकेट नहीं मिलता, हमेशा 3 पैकेट या 4 पैकेट का बंडल मिलता है। तो अगर आपको उसमें से एक ही चाहिए तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक तो फाड़ के उठा के लेके चले गए, नहीं, ऑब्वियसली आपको पूरा ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी आपको पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है। ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, पार्ट एक्सेप्टेंस यानी कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था? द टर्म्स ऑफ एन ऑफर, मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। फिर सेकंड में आओ, offer and acceptance both must be communicated, offer and acceptance both must be communicated। अब ऑफर में इसका केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, कौन है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब सुनो इसमें क्या हुआ था। तो बेसिकली लालमन शुक्ला जो है वो गौरी दत्त के यहाँ पे काम करता था, बेसिकली गौरी दत्त का सर्वेंट था। ठीक है। एक बार गौरी दत्त के यहाँ पे उसका घर पे उसका नेफ्यू आया हुआ था, एंड नेफ्यू खेलते खेलते गांव के बाहर चला गया, बाउंड्री पार चला गया, तो खो गया। अब गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को बोला कि जा 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 मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ला। मीनवाइल लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए बाहर निकला हुआ है, और इधर गौरी दत्त ने एक तो अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा मैं उसको इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है। लेट मी टेल यू, लालमन शुक्ला को नहीं मालूम है कि गौरी दत्त ने ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस किया है अपने नेफ्यू के पीछे। ठीक है। अभी तो लालमन शुक्ला को उसका नेफ्यू, गौरी दत्त का नेफ्यू उसके पास ही के गांव में मिल जाता है और वो उसको ढूंढ के ले आता है। ठीक है। गौरी दत्त उसको बहुत शाबाशी देता है, सब कुछ देता है, बात खत्म। ठीक है, सब लोग रात को सो रहे हैं। अब लालमन शुक्ला अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था, तो उसके दोस्त लोग बोले कि आज तो भाई पार्टी हमारा भाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने अपने मालिक का नेफ्यू ढूंढ के लाया और बदले में उसको रिवॉर्ड भी मिला है। लालमन शुक्ला बोला रुको, कौन सा रिवॉर्ड, हमको तो मालूम ही नहीं है। तब फिर पूरा कहानी उसके दोस्त लोग उसको बताए कि ऐसा ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस किया था तुम्हारे मालिक ने, तुमको दिया नहीं। इस चक्कर में लालमन शुक्ला पूरा रात नहीं सोया, और नेक्स्ट डे सुबह होते ही सबसे पहले अपने मालिक के पास गया और रिवॉर्ड मांगा। मालिक बोला रुको, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अरे जब तुमको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑफर था तो भी तुम ऐसे कैसे एक्सेप्टेंस दे सकते हो? एक्सेप्टेंस देने के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए भाई की ऑफर था, है कि नहीं? ठीक है। तो गौरी दत्त डिड नॉट पे एनी पेनी टू लालमन शुक्ला। हाँ, वो अलग बात है कि अगर लालमन शुक्ला थोड़ा स्मार्ट प्ले करता कि हाँ हमको तो पता था कि ऑफर है, ठीक है ना, वो तो बस हम रात को आपसे मांगना भूल गए थे, तब तो फिर भी मिल जाता उसको, बट वो तो ठहरा सत्यवादी इंसान। ठीक है, और उसने तो बोल दिया सारा सच बात। तो गौरी दत्त को एक भी पैसा लालमन शुक्ला को पे नहीं किया गया। चार्जर, आईपैड का चार्जर, आईपैड का चार्जर। ओके। ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड सेम वैसे ही एक्सेप्टेंस शुड आल्सो बी कम्युनिकेटेड। आते हैं थर्ड पॉइंट में, क्या ऑफर कैन बी कंडीशनल? यस, ऑफर कैन बी कंडीशनल। अभी हम लोग बात किए थे कि स्पेंसर में जब चिप्स खरीदने जाते हैं तो अगर एक पैकेट चाहिए तो नहीं मिलता, पूरा जो पैक है 4 पैकेट का वो खरीदना पड़ेगा, तब जाके एक पैकेट मिलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, ऑफर कैन बी कंडीशनल। उसी के साथ में
Acceptance must be given in prescribed mode. If no mode is prescribed, then in reasonable mode. देखो, कभी नापतोल का एडवर्टाइजमेंट देखे हो क्या? देखे ही होगे ऑब्वियसली। तो क्या होता है कि अगर आपको नीचे दिए गए ऑफर को अवेल करना है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना पड़ता है। अब तुम तो कॉल ही करते हो ना, थोड़ी ना ऐसा ईमेल करते हो या कुछ भी करते हो या ईमेल करते हो या मैसेज करते हो, नहीं, कॉल ही करना पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब्ड कर दिया है, तो भाई जो मोड प्रेस्क्राइब किया है आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो आज के डेट में जो रीजनेबल मोड चलता है आपको वही उसी मोड से एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 का है ना, तो उस समय टेलीग्राम चलता था। आज के दिन में टेलीग्राम से थोड़ी एक्सेप्टेंस भेजोगे, नहीं, तुम कॉल करोगे, ईमेल करोगे या फिर व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है ना। तो आज के डेट में जो रीजनेबल मोड चलता है आपको उसी मोड से एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 3 पॉइंट पढ़ लिए। The terms of an offer must be definite and certain. The terms of an offer must be definite and certain. Acceptance must be given in acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. Both must be communicated. Offer can be conditional. Acceptance must be given in prescribed mode. If no mode is prescribed, then reasonable mode. Then use reasonable mode. Okay? एक बार वीडियो पॉज करके ये तीनों पॉइंट आई वुड सजेस्ट आप लोग लिख लो, ऐसे ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का पूरा डायग्राम बना के सुंदर से। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। इट मस्ट बी मेड with a view to obtain the assent of the other party. It offer must be made with a view to obtain the assent of the other party. ये लाइन तो हम लोग डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं ना। एक इंसान ऑफर क्यों करेगा, एक इंसान ऑफर इसी करेगा ताकि वो चाहता है सामने वाला उस इंसान को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, किए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। ऑब्वियस बात है, एक्सेप्टेंस उसी इंसान को देना है जिसको ऑफर किया गया है। एक्सेप्टेंस उस इंसान को देना है जिसको ऑफर किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने अगर किसी लड़की को प्रपोज किया तो ऑब्वियस सा बात है एक्सेप्टेंस या हाँ तो वो लड़की बोलेगी ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी बोलेगी। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। क्लासिक केस हमने इसका ऑलरेडी देख चुका है, वो था बोल्टन वर्सेस जोन्स। फिर ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म the non-compliance of which would amount to acceptance. Offer should not contain a term the non-compliance of which should amount to acceptance. इसमें क्या बोल रहा है, ऑफर में एक कोई भी ऐसा टर्म या कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसको अगर नहीं माना, जिसको अगर नहीं माना तो एक्सेप्टेंस मान। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार में रिलेट कर लो, क्या हुआ था डीडीएच में जब शाहरुख खान बोला था कि अगर काजोल पीछे मुड़ के, अगर काजोल पीछे मुड़ के नहीं देखी तो वो उससे प्यार नहीं करती, और अगर पीछे मुड़ के देख ली तो करती है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते, आप ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं लगा सकते जो अगर नहीं माना तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने अगर लड़की को प्रपोज किया और बोला कि तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, सोच के बताओ। अगर 3 दिन में कुछ नहीं बोला तो हाँ मान लेंगे, 3 दिन में कुछ नहीं बोला तो हाँ मान लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखना है जिसको अगर नहीं माना तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। उसके अलावा मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर कोई इंसान ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है तो भाई उसका मतलब ना ही है, अगर चुप है तो उसको हाँ मत मानना। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इसका केस था फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले। ध्यान से सुनो इसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 पार्टी है, एक फेल्टहाउस है, एक फेल्टहाउस जी का नेफ्यू है, और एक नेफ्यू का ऑक्शनियर है बिंडले, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड,
जो नेफ्यू है ना, फेल्टहाउस का जो नेफ्यू है, उसका एक तो हॉर्स फार्म था, ठीक है, जहां से ये हॉर्सेस को बेचता था ऑक्शन के द्वारा। एंड जो ऑक्शन कंडक्ट करता था उसका आदमी, उसका नाम था बिंडले। तो एक दिन फेल्टहाउस चले अपने नेफ्यू के फार्म विजिट करने, वहां पे उनको एक तो व्हाइट घोड़ा बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया, ठीक है। तो उन्होंने अपने नेफ्यू को बोला कि मैं नेक्स्ट संडे फिर से आऊंगा और तुम्हारे पास एक वीक का टाइम है। अगर तुमने ना हाँ बोला ना बोला, कुछ नहीं बोला, तो मैं मान लूंगा कि तुम ये व्हाइट घोड़ा मुझे बेचने के लिए रेडी हो, ठीक है। नेफ्यू बोला कोई बात नहीं अंकल जी है, आके घोड़ा ले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो नेफ्यू ने बिंडले को बोल दिया कि भाई अगले संडे पेल्ट हाउस यानी कि मेरे अंकल जी आके घोड़ा लेके जाएंगे, ये घोड़ा अलग से रखना, इसको मत ऑक्शन करना, ठीक है। अब बिंडले ने क्या किया, बिंडले ठहरा भुलक्कड़, बी फॉर बिंडले, बी फॉर भुलक्कड़, भूल गया और उसने वही व्हाइट घोड़ा वाला ऑक्शन में बेच दिया। अब नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट संडे को फेल्ट हाउस अंकल जी आए, पहुंचे हॉर्स फार्म वापस, क्या उनको घोड़ा मिला, तो घोड़ा मिला, नहीं मिला, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने नेफ्यू पे केस नहीं किया, उन्होंने अपने उसके ऑक्शनियर बिंडले पे केस कर दिया, क्योंकि नेफ्यू तो बेचने के लिए रेडी था ना, बिंडले के ऊपर केस कर दिया। तो जब कोर्ट में ये बात पहुंचा, जब कोर्ट में ये बात पहुंचा, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि पहला बात तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा बोला कि अगर वो एक महीने एक हफ्ता तक कुछ नहीं बोला तब उसको हाँ मान लेंगे, और नेफ्यू ने ना हाँ बोला ना ना बोला। यार साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, उसने हाँ बोला होता तो कॉन्ट्रैक्ट बनता, यहाँ तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो भाई मियर साइलेंस इज नो नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक, ठीक है, mere silence is not acceptance। उसके बाद में ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, जब आप सामने से जाके बोलते हैं कि एक्सप्रेस्ड ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर मतलब जब बस स्टॉप पे आके रुक जाता है, ठीक है, जिसको वो इम्प्लाइड ऑफर है, जिसको ऑफर एक्सेप्ट करना है वो बस पे चढ़ जाए, वो हो गया इम्प्लाइड ऑफर। ठीक वैसे ही एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, आपने सामने से हाँ बोला मुंह से तो एक्सेप्टेंस, वही आप बस पे चढ़ गए बिना कुछ बोले तो वो हो गया इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, जहाँ पे कंडक्ट ऑफ दी पार्टी से ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, ठीक है। ऑफर आप ऐसा ही करो, आप ऐसा ही ऑफर करो जिसको आप बाद में जाके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे सको, ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। उसके अलावा एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब देन विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग बिलियन डे ऑफर होता है या अमेजोन सेल होता है, वो तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है ना, वो टाइम पीरियड में जिसको जो ऑफर चाहिए वो अवेल कर लो। लेकिन जब ऑफर खत्म हो जाता है तो क्या तुम कंसल या जेफ बेजोस को फोन लगाते हो क्या कि आपका वो ऑफर था, मेरे को अभी चाहिए, अभी दो? नहीं, अगर आपको वो ऑफर चाहिए था तो आपको वो विद इन रीजनेबल टाइम, जितना टाइम के लिए वो ऑफर खुला था, आपको तब एक्सेप्टेंस देना चाहिए था, ठीक है। और अगर किसी ऑफर में रीजनेबल प्रेस्क्राइब टाइम क्या है या ड्यू डेट या लास्ट डेट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब आप रीजनेबल टाइम में कर दो, एक दिन 2 दिन मैक्सिमम वैसे करके कर दो, ठीक है। फिर लास्ट में ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। अब जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ऑफर, ठीक है। तो एक बार पहले the terms of an offer must be definite and certain. Either offer, either acceptance. The terms of an offer must be definite and certain. Acceptance must be absolute and unqualified. Both must be communicated. Offer can be conditional. Acceptance must be given in prescribed mode. If no mode is prescribed, then reasonable mode. Offer must be made with a view to obtain the assent of the other party, and acceptance must be given by the person to whom the offer is made, ठीक है। Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Mere silence is not acceptance. Offer may be expressed or implied. Acceptance may be expressed or implied. Offer must be capable of creating legal relations.
Offer must be capable of creating legal relations. Acceptance must be given within prescribed time. If no time is prescribed, then within reasonable time. Offer may be general or specific. एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करना एंड पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 लिख लेना, ठीक है। 4, 5, 6, 7 हो गया इधर में, थोड़ा सा ऊपर करते ही 8 आ जाएगा, ठीक है क्या। एक बार वापस से लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर, ठीक है। एक तरफ ऑफर, एक तरफ एक्सेप्टेंस। The terms of an offer must be definite and certain. The terms of an offer must be definite and certain. Acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. Both must be communicated. Both must be communicated. Offer can be conditional. Acceptance must be given within prescribed mode. No mode is prescribed, then via reasonable mode. Offer must be made. Offer must be made with a view to obtain the assent of the other party. Offer must be made with a view to obtain the assent of the other party. Acceptance must be given by the person to whom the offer is made. Acceptance must be given by the person to whom the offer is made. Offer should not contain a term. Offer should not contain a term, the non-compliance of which would amount to acceptance. Offer should not contain a term, the non-compliance of which would amount to acceptance. Here, silence is not acceptance. Offer may be expressed or implied. Acceptance may be expressed or implied. Offer must be capable of creating legal relations. Offer must be capable of creating legal relations. Acceptance must be given within prescribed time. Acceptance must be given within prescribed time. If no time is prescribed, then within reasonable time. No time is prescribed, then within reasonable time. और लास्ट में ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 7 to 8 मार्क्स के लिए कि डिफाइन एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। दैट मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस करना ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।